Hello everyone. In this video we will discuss section 13 to 33 of Excise Act, Chhattisgarh Excise Act. Section 13 provides license required for manufacture etc. of intoxicants. Clause A provides no intoxicant shall be manufactured or collected, no hemp plant shall be cultivated, no terry producing tree shall be tapped, and no terry shall be drawn from any tree. No liquor shall be bottled for sale. No distillery or brewery shall be constructed for worked. It is or worked. And no person shall use, keep or have in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing an intoxicant other than terry. So it is providing nothing, all of these things shall not be done except under the authority and subject to the terms and condition of the license granted in this behalf. So it is saying that for doing all these things, manufacturing intoxicant, cultivating hemp plant and producing terry and drawing terry or bottling liquor for sale, distillery or brewery construction और उसका working of distillery and brewery. So कोई भी and last one F, no person shall use, keep or have in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus for the purpose of manufacturing intoxicant other than terry. So you remember this, other than terry, all these things cannot be done except under the authority and subject to the terms and condition of a license granted in this behalf. Alright, so this is provided in section 13. Proviso to section 13 provides that provided that state government may declare that the provisions of this section shall not apply in any area specified in this behalf to the tapping of terry producing tree or to the drawing of terry. So state government exempt कर सकती है section को terry producing trees के लिए और उसके drawing के लिए. So this is a proviso. Second proviso provide करता है the state government may declare that the provisions of this section shall not apply in such areas as may be specified manufacture of liquor for home consumption. तो home consumption के लिए जो liquor का manufacture होता है उसको भी exempt कर सकती है, declare कर सकती है state government. So these are two provisos to section 13. Now section 14 provides establishment or licensing of distilleries and warehouses. So excise commissioner may, so excise commissioner is the authority. Excise commissioner may establish a distillery in which spirit may be manufactured under a license granted under section 13. Second, discontinue any such distillery, license the construction and working of distillery or brewery, and establish or license a warehouse wherein any intoxicant may be deposited and capped without payment of duty, but subject to the payment of such fee as the state government may direct, and discontinue any such warehouse. So herein excise commissioner is the authority और he can provide that establishment of a distillery जहाँ पर spirit का manufacture हो सकता है एक license के अंदर जो 13 में grant होता है उसको discontinue करने के लिए बोल सकता है. लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलरी एंड ब्रूवरी के लिए, एंड एस्टैब्लिश और लाइसेंस अ वेयर हाउस जहाँ पर इंटॉक्सिकेंट्स को रखा जा सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी के, बट वहाँ पर एक फ़ीस स्पेसिफाई की जा सकती है और ऐसे वेयर हाउस को डिसकंटिन्यू करने का भी ऑर्डर हो सकता है. सेक्शन 15 प्रोवाइड्स पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल फ्रॉम डिस्टिलरी, ब्रूवरी और प्लेस ऑफ स्टोरेज. सो विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट shall be removed from any distillery, brewery, warehouse or any other place of storage established or licensed under this act unless the duty payable under chapter 5 has been paid or a bond has been executed for the payment thereof. So कोई भी डिस्टिलरी, ब्रूवरी और जहाँ पर भी इंटॉक्सिकेंट्स को स्टोर करा जाता है वहाँ से उनको रिमूव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वहाँ पे जो ड्यूटी पेबल है वो पे नहीं करी जाती है या उस पेमेंट के लिए कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, तब तक उसको नहीं विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उसको रिमूव नहीं कर सकते. क्लियर. सेक्शन 16 प्रोवाइड्स पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली. इट प्रोवाइड्स स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन prescribe a limit of quantity for the possession of an intoxicant.
तो कोई भी व्यक्ति कितना इंटॉक्सिकेंट को पजेस कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है नोटिफिकेशन से. एंड प्रोविजो सेज दैट डिफरेंट लिमिट्स में बी प्रेस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ द सेम आर्टिकल. तो अलग अलग लिमिट में डिफरेंट क्वालिटीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ लिकर लिमिट फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिकर इज़ 1 liter and another kind of liquor for 5 liters. So there may be different limits for different qualities of same article. No person shall have in his possession any quantity of any intoxicant in excess of the limit prescribed under subsection 1, except under the authority and in accordance with the terms and condition of a license for the manufacture, cultivation, collection or supply of such intoxicant, or a pass for import, export or transport of such intoxicant, or a permit granted under this act. So ऐसी जो क्वांटिटी प्रोवाइड करी गई है सबसेक्शन 1 में, इससे एक्सेस में तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में ना हो किसी लाइसेंस, पास या परमिट के, जो इसके मैन्युफैक्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, सेल के लिए किसी भी इंटॉक्सिकेंट के, या उसके रिगार्डिंग पास इशू किया गया है उसके फेवर में फॉर इम्पोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग या परमिट है. तो ये सबसेक्शन 2 बता रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो पास, लाइसेंस, परमिट में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही पजेस करा जाएगा, उस लिमिट के बाहर जो सबसेक्शन 1 में दिया है. सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू एनी फॉरेन लिकर which is in possession of any common carrier or warehouse man as such. Okay, so common carrier और warehouse man के पास possession में जो liquor है which is a foreign liquor, उस पर subsection 2 apply नहीं होगा. Subsection 4 provides, notwithstanding anything contained in the foregoing subsections, the state government may by notification prohibit the possession by any person or class of persons either in a state or in any specified area of an intoxicant either absolutely or subject to such conditions as it may prescribe. So it is providing that state government notification के through prohibit कर सकता है किसी भी व्यक्ति के class of persons के लिए, किसी individual के लिए, state में या किसी specified area में state के, या तो पूरी तरह से intoxicants को prohibit कर सकता है possession से, या कुछ conditions impose कर सकते हैं subject to certain conditions जो वो प्रेस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं. सेक्शन 17 प्रोवाइड्स लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट. सो इट इज सेक्शन 17 इज अबाउट लाइसेंस. सो इट प्रोवाइड्स दैट नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी सोल्ड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड इन दैट बिहाफ. सो कोई भी इंटॉक्सिकेंट को सेल नहीं किया जा सकता जब तक अथॉरिटी ने कोई लाइसेंस ग्रांट नहीं कर दिया है और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही इसका सेल हो सकता है. लाइसेंस देन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग ही सेल होगा किसी भी इंटॉक्सिकेंट का. बट देयर आर प्रोविजोस. फर्स्ट प्रोविजो provided that a person having the right to tarry drawn from any tree may sell such tarry without a license to a person's license to manufacture or sell tarry under this act. तो कोई व्यक्ति जो जिसके पास राइट है तरी को ड्रॉ करने का और उसके बाद उसको एक ऐसा लाइसेंस के बिना वो ऐसे व्यक्ति को दे सकता है, बेच सकता है जिसके पास मैन्युफैक्चर और उसको बेचने का लाइसेंस है. सो इट इज़ टेक्निकल दैट कोई भी व्यक्ति बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है. अगर उसके पास ये राइट दिया गया है कि वो तरी को ड्रॉ करके बेच सकता है बिना लाइसेंस के, बट ऐसे व्यक्ति को ही बेच सकता है जिसके पास मैन्युफैक्चर और सेल करने का तरी को राइट है, लाइसेंस है. आई एम सॉरी, इसके पास लाइसेंस होना चाहिए. सो परचेसर शुड हैव लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एंड सेल तरी. सो इट इज़ क्लियर दैट एनी पर्सन having the right to tari drawn from any tree may sell it without any license, but to a person who has license to manufacture and sell tari under this act. Clause B provides a person under section 13 to cultivate the hemp plant may sell without a license those portions of the plant from which the intoxicating drug is manufactured or produced to any person licensed under this act to deal in the same or to any officer whom the excise commissioner may prescribe. So clause B provide कर रहा है प्रोविज़ो का दैट कोई भी व्यक्ति जो कल्टीवेट करता है हैम्प प्लांट को वो बेच सकता है बिना लाइसेंस के
ऐसे पोर्शंस को इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के, ऐसे पोर्शंस और प्लांट को जो जिससे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मैन्युफैक्चर होती है या प्रोड्यूस होती है, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास इससे डील करने के लिए मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करने का लाइसेंस यहाँ पर उसके पास इस एक्ट के अंदर है, या एनी ऑफिसर हुम द एक्साइज कमिश्नर में प्रेस्क्राइब, या फिर किसी एक ऐसे ऑफिसर को जो एक्साइज कमिश्नर प्रेस्क्राइब करता है उसको बेच सकता है. सो अ पर्सन अंडर सेक्शन 13 टू कल्टिवेट द हैम प्लांट में सेल without a license those portions of the plant from which the intoxicating drug is manufactured or produced to any person licensed under this act to deal in the same or to any officer whom the excise commissioner may prescribe. प्रोविज़ो का क्लॉज सी प्रोवाइड कर रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर lawfully procured by any person for his private use and sold by him or on his behalf or on behalf of his representatives and interests upon his quitting a station or after his decease. तो कोई भी व्यक्ति अगर वो सेल करता है फॉरेन लिकर को जो उसने कुछ प्राइवेट यूज़ के लिए रखी हुई है, या उसके मरने के बाद या उसके बिहाफ पे किसी और के द्वारा वो सेल करी जाती है, और क्विटिंग अ स्टेशन उसके स्टेशन को वो जब छोड़ रहा होता है उसको पूरी तरह से अपने स्टोर को ख़त्म कर रहा होता है, या उसके डेथ के बाद कोई और उसका रिप्रेजेंटेटिव सेल कर देता है. सो ऐसे केसेस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. Now subsection 2 provides on such conditions as the excise commissioner may determine a license for sale under the excise law for the time being in force in other states or union territories may be deemed to be a license granted in that behalf under this act. So किसी अदर स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज़ में जो लाइसेंस इशू किया गया है सेल के लिए, वो कुछ कंडीशंस पे एक्साइज कमिश्नर उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे कि ये ऐसा माना जाएगा कि वो लाइसेंस इसी एक्ट के अंदर इशू किया गया है. Now subsection 3 provides sale or supply of liquor. The sale of liquor shall be permitted only through licensed liquor vends. So जो licensed liquor vends हैं जिनके पास बेचने का लाइसेंस है, वही उनको ही परमिट होगा लिकर को सेल करने का. Which shall not be located within 500 meters radical distance from the outer range of national or state highways or service lane along such highway, and such liquor vents shall neither be directly visible nor accessible from the national or state highway. So 500 radical distance से के अंदर ये लोकेटेड नहीं होंगे नेशनल और स्टेट हाईवे से, और सर्विस लेन along such highway and such liquor vents shall neither be directly, so ये visible भी नहीं होंगे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से. सो ना तो विजिबल होना चाहिए डायरेक्टली, ना ही एक्सेसिबल होना चाहिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से, और 500 मीटर्स रेडिकल डिस्टेंस के अंदर नहीं होना चाहिए स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज से. सो दैट इज़ द कंडीशन. नाउ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, hotels having a license shall be entitled to engage in supply of liquor to members, guests or other persons for consumption of such liquor within the premises of such hotels, irrespective of whether such hotel is located on or near any national or state highway. So ये प्रोवाइड कर रहा है कि चाहे कोई जजमेंट डिक्री और कोई कोर्ट किसी ट्रिब्यूनल अथॉरिटी का ऑर्डर ही जजमेंट क्यों ना हो, होटल्स जिनके पास सप्लाई ऑफ लिक्कर उनके मेंबर्स जो गेस्ट आते हैं होटल्स में उसको ऐसा सप्लाई करने के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए लिकर को गेस्ट को और जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके पास उसका लाइसेंस है, तो कोई भी ऐसी डिक्री ऑर्डर उनको रोक नहीं सकती, कोई भी जजमेंट उनको रोक नहीं सकती उनको सप्लाई करने के लिए उनके प्रेमाइसिस के अंदर, होटल प्रेमाइसिस के अंदर, और वहाँ पे प्रेमाइसिस के अंदर ही कंजम्पशन किया जाएगा, चाहे वो होटल किसी नेशनल और स्टेट हाईवे के आसपास ही क्यों ना हो. सो दिस इज़ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17. Clause C provides notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, any license issued to any hotel or common drinking house for sale of liquor shall be deemed to have been always issued for supply of liquor, and all relevant provisions of this act and the rules made thereunder shall continue to apply as they did for sale of liquor.
सो जो लाइसेंस किसी होटल और कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को लिकर सेल करने के लिए इशू किया जाता है, ऐसा माना जाएगा कि वो जो लाइसेंस है वो सप्लाई ऑफ लिकर के लिए मतलब इस एक्ट के अंदर इशू किया जाता है, तो वो सारे रूल्स और जो प्रोविज़न्स होंगे रिलेटेड रेलेवेंट प्रोविज़न्स, ऐसा माना जाएगा कि वो सारे ही जो इस एक्ट में प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, रूल्स बनाए गए हैं सेल ऑफ लिकर के लिए, वो ऐसे लाइसेंस जो होटल एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के सेल के लिए इशू करे जाते हैं, वो प्रोविज़न्स वैसे ही माने जाएंगे जैसे इस एक्ट के अंदर सेल ऑफ लिकर के लिए प्रोविज़न्स अप्लाई होते हैं, इक्वली वैसे ही उस पर भी अप्लाई होंगे। सेल ऑफ लिकर बाय होटल्स एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस टू देयर कस्टमर एंड गेस्ट, उसके लिए जो लाइसेंस इशू होता है, सो वैसे ही उन पर भी वही प्रोविज़न्स इक्वली अप्लाई होंगे जो सेल ऑफ लिकर के लिए इस एक्ट में प्रोविज़न्स दिए हैं। जो प्रोविज़न्स अप्लाई होते हैं, जो रूल्स अप्लाई होते हैं, इक्वली वैसे ही अप्लाई होंगे। As it is written there that shall be deemed to have been always issued for supply of liquor. So जो सेल के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है यहाँ पर होटल्स एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के लिए, सेल के लिए, वो ऐसा माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ लिकर के लिए इशू किया गया है, और जो सारे प्रोविज़न्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं वो वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे इस एक्ट में प्रोविज़न्स और रूल्स अप्लाई होते हैं सेल ऑफ लिकर के लिए। सेक्शन 18 प्रोवाइड्स power to grant lease of right to manufacture, etc. The state government may lease to any person on such conditions, terms and condition for such period as it may think fit, the right of manufacturing or supplying by wholesale or both, of selling by wholesale or by retail, or of manufacturing or of supplying by wholesale or both, and selling by retail any liquor or intoxicating drug within any specified area। तो स्टेट गवर्नमेंट लीज पे दे सकता है ऑल दीज थिंग्स टू एनी पर्सन ऑन सच कंडीशंस जो सही लगती हैं स्टेट गवर्नमेंट को। लीज किस चीज़ का? राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, बाय रिटेलिंग और होलसेल, और मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई करना बाय रिटेल और होलसेल किसी भी लिकर को या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को किसी स्पेसिफाइड एरिया में। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ग्रांट टू a lessee under subsection 1 a license in terms of his lease। लीज़ की टर्म्स में एक लाइसेंस इशू कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एंड व्हेन देयर इज़ नो कंडीशन इन द लीज विच प्रोहिबिट्स द सब लेटिंग may on the application of lessee grant a license to any sub lessee approved by such authority। तो यहाँ पर सब लेसी को भी लाइसेंस दे सकते हैं अगर वहाँ पर प्रोहिबिटेड नहीं है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इन टर्म्स ऑफ लीज प्रोवाइड कर सकता है, जिसको सब लेसी को भी एक लाइसेंस दिया जा सकता है अगर इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। नाउ सेक्शन 18 कैपिटल ए प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल एट्सेट्रा मे बी ग्रांटेड। इट प्रोवाइड्स नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट मे ग्रांट द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू द छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, a corporation wholly owned or controlled by state government, for manufacturing or selling by retail or wholesale Indian made foreign liquor within the state। so ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर सकती है प्रिविलेज छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड को, ऐसा कॉरपोरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है, ओन्ड है, और जो मैन्युफैक्चर और सेल कर रहा है इंडियन मेड फॉरेन लिक्कर को विद इन द स्टेट। Thereupon the excise commissioner, subject to the rules made by the state government, may grant necessary license to the Chhattisgarh State Beverage Corporation for the aforesaid purpose। तो excise commissioner ऐसे rules के subject to लाइसेंस ग्रांट करेगा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन को, जो सबसेक्शन 1 में जिसके बारे में बताया। एंड देन द छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन आफ्टर ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस में ओपन इट्स ब्रांचेस, डिपोट्स इन स्टेट इन सच प्लेसेस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड। तो ब्रांचेस ओपन कर लेगा जैसे लाइसेंस मिलता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट में, बट ओनली आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ सच लाइसेंस। तो जैसे ही लाइसेंस मिलता है छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन अपने ब्रांचेस और डिपोट्स को ओपन कर सकता है और उसको सेल कर सकता है। सेक्शन 19 प्रोवाइड्स lessee's permission to draw tari where a right of manufacturing tari has been
leased under Section 18, the state government may declare that the written permission of the lessee to draw tari shall have the same force and effect as a license from the collector for that purpose. So this section providing जहाँ पर मैन्युफैक्चर करने का राइट लीज करा गया है सेक्शन 18 के अंदर तरी के, तो ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है कि लेसी के द्वारा रिटन परमिशन ऑफ द lessee to draw tari shall have the same force and effect as a license from the collector for that purpose. So ऐसे केसेस में जहाँ पर लेसी उसको ड्रॉ करने के लिए रिटन परमिशन दे देता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसका सेम फोर्स होगा जैसे लाइसेंस दे दिया गया है कलेक्टर के द्वारा. सो जैसे कलेक्टर लाइसेंस देता है ऐसा इफेक्ट माना जाएगा कि ड्रॉ करने के लिए जो रिटन परमिशन दी गई है उसका इफेक्ट कलेक्टर के द्वारा लाइसेंस की तरह ही होगा. सो दिस इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 19. Section 20 provides manufacture and sale of liquor in military and cantonments. So within the limits of military cantonment and within such distance from those limits as the central government in any case may prescribe. So you have to remember that cantonment and military is all under the control of central government. So यहाँ पे authority central government है, state government नहीं है. So within the limits of any military cantonment and within such distance from those limits as the state central government in any case may prescribe, no license for the retail sale of liquor shall be granted except with the knowledge and consent of the commanding officer. So उन एरियाज़ में जहाँ पर मिलिट्री कंटोनमेंट है और उससे दूर कुछ डिस्टेंस जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे लाइसेंस रिटेल सेल के लिए लिकर का नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. So it is provided under Section 20. Section 21 provides duties of licensee with regard to measurement and testing. Every person who manufactures or sells any intoxicant under a license granted under this Act shall be bound to supply himself with such measures, weights and instruments as the Excise Commissioner may prescribe and to keep the same in good condition on the licensed premises. Okay. B provides on the requisition of any excise commissioner duly empowered in that behalf at any time to measure, weigh or test any intoxicants in his possession in such manner as the said excise officer may require. So excise officer की जो empowered है इस behalf पे वो किसी भी समय पे उसको उसका weight check कर सकता है, किसी intoxicant को उसको measure कर सकता है, उसको test कर सकता है जैसे भी एक्साइज ऑफिसर चाहता है. एंड ये प्रोवाइड करता है कि जैसे ही उसको किसी व्यक्ति को सेल करने का या मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद वो बाउंड होगा सारे मेजर्स, वेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास अच्छी कंडीशन में रखने के लिए. सेक्शन 22 प्रोवाइड्स प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सनस अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ऑफ वुमेन. सो इट इज़ अ क्लियर क्वेश्चन दैट 21 ईयर की एज के अंदर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में होगा या वुमेन होगी इस एज़ पर दिस सेक्शन तो वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है एज़ पर सेक्शन 22. इट प्रोवाइड्स नो पर्सन हु इज़ लाइसेंस टू सेल इंटॉक्सिकेंट्स फॉर कंजम्पशन ऑन हिज premises shall during the hours in which such premises are kept open for business employ or permit to be employed either with or without remuneration any male person under the age of 21 years or any woman in any part of such premises in which such intoxicant is consumed by the public. So remember this, that this section is prohibiting the employment of male persons under the age of 21 years and of women. It is not restricting or prohibiting the consumption of any intoxicant of any person within 21 or of a woman. So as you can notice here, it is just restricting, prohibiting employment of male persons under 21 and of a woman. Male and of women, male must be under 21 who is prohibited for employment under as per this section. So it is clear that कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटॉक्सिकेंट को सेल करने के लिए, कंजम्पशन के लिए उसके प्रोमाइसिस में लाइसेंस मिला है वो किसी भी वुमेन को परमिट नहीं, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रख सकता है अपने बिजनेस आवर्स में, और कोई भी मेल जो 21 से कम उम्र का है उसको भी नहीं रख सकता है. इट इज़ प्रोहिबिटेड, बट इट इज़ नॉट प्रोहिबिटिंग द कंजम्पशन ऑफ पर्सन्स ऑफ सच एज एंड ऑफ वुमेन. So we should not confuse this
Provision with consumption, it is just about employment. Section 23 provides prohibition of sale of liquor, intoxicating drug to persons under the age of 21 years. So no person who is licensed to sell intoxicants shall sell or deliver any liquor or intoxicant drug to any person apparently under the age of 21 years, whether for consumption by such person or by any person, or whether for consumption on or off the premises of such vendor. So now this provision, section 23, is prohibiting the consumption, whether a person under the age of 21 years is buying for his own consumption or buying for anyone. This section prohibits the licensed person who is selling intoxicants to anyone. They cannot sell anyone under the age of 21 years. Whether it is being purchased by such person under 21 of age, either whether it is for his own consumption or for anyone. So it is completely prohibiting selling of intoxicating liquor under the age of 21 years to any person who is within 21 years of age. Section 23 capital A provides prohibition of advertisement relating to liquor. Subsection 1, in this section, advertisement includes any notice, circular, label, wrapper or other documents. Any notice, circular, label, wrapper or other documents, any announcement made orally or by any means of producing or transmitting light, sound or smoke, any exhibition by means of slide or film exhibited on the screen in cinema licensed under Chhattisgarh Cinema Regulation Act 1952 or any other place of entertainment. Section 2 provides whoever prints or publishes or causes to be printed or published in any newspaper, book, leaflet, booklet or any other single or periodical publication or otherwise displays or distributes or causes or permits to be displayed or distributed an advertisement or other matter commending, soliciting use of or offering or purporting to commending, soliciting the use of or commending any liquor shall be punished for every such offence with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both. So सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स कि कोई भी प्रिंट करता है, पब्लिश करता है ऐसी बुक, लीफलेट, बुकलेट, न्यूज़पेपर जिसमें ये एडवर्टीज़मेंट या यूज़ करना या ऑफ़र करना लिकर को सॉलिसिट किया गया है, इस एडवर्टीज़मेंट जो सबसेक्शन 1 में डिफ़ाइन किया गया है, ऐसा कुछ करना, उसको कमेंट करना, सॉलिसिट करना यूज़ को किसी भी लिकर को, वो सारा ऐसा एवरी ऑफेंस शैल बी पनिश्ड एंड उसका इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड किया गया है विच में एक्सटेंड टू 6 months और with fine which may extend to 2000 rupees. So 6 months or 2000 rupees or both. So this is the punishment under subsection 2. Subsection 3 provides except as otherwise provided in subsection 4, nothing in subsection 2 shall apply to a catalog or a price list to be displayed on liquor vends in Chhattisgarh in accordance with the provisions of this act और द रूल्स मेड देयर अंडर. तो कैटलॉग और प्राइस लिस्ट पे अप्लाई नहीं होगा. बी प्रोवाइड्स एनी एडवर्टीजमेंट और अदर मैटर कंटेन्ड इन एनी न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट और एनी और अदर पब्लिकेशन प्रिंटेड और पब्लिश्ड आउटसाइड छत्तीसगढ़. तो ऐसे एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर और बुक और बुकलेट जो आउटसाइड छत्तीसगढ़ में प्रिंट करे गए हैं, पब्लिश करे गए हैं, उन पर भी अप्लाई नहीं होगा. एनी एडवर्टीजमेंट्स और अदर मैटर contained in any newspaper printed and published. So you have to remember here also the printed and published ना ही छत्तीसगढ़ में printed हैं ना ही published हैं. And same here, any advertisement or other matter contained in any newspaper printed and published in Chhattisgarh before such date as the state government may by notification specify. तो कुछ ऐसा डेट जो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई किया गया है, किसी पर्टिकुलर डेट के पहले अगर पब्लिश करा गया छत्तीसगढ़ में या प्रिंट करा गया है, प्रिंट एंड पब्लिश किया गया है, उस पर भी ऐसे एडवर्टीज़मेंट और ऐसे पब्लिकेशन पे भी अप्लाई नहीं होगा. ये सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 जो ऐसे सॉलिसिटिंग और कमेंडिंग और एडवर्टीज़मेंट जो उसको पनिश कर रहा है, एक ऑफेंस बना रहा है जिसकी पनिशमेंट दी है सबसेक्शन 2 में, वो इन कैटेगरीज में अप्लाई नहीं होगा.
डी प्रोवाइड कर रहा है एनी अदर एडवर्टीजमेंट और मैटर विच द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन जनरली और स्पेशली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्शन। सो स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे एडवर्टीजमेंट को नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर सकती है। सबसेक्शन 4 प्रोवाइड कर रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 a state government may by notification prohibit within the state the circulation, distribution, sale of any newspaper, book, leaflet, booklet or other publication printed and published outside the state which contains any advertisement or matter commending, soliciting use of or offering or purporting to commending, soliciting use of or offering of any liquor, whatever, whoever circulates, distributes or sells such newspaper, book, leaflet, booklet or other publication in contravention of such notification shall be punished for every offence with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2,000 rupees or with both. So this subsection is providing punishment for contravention of the notification by state government that जो publication या newspaper जो advertisement कर रहा है लिकर के सर्कुलेशन को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ़र और उसके यूज़ को सॉलिसिट कर रहा है, ऐसा कोई पब्लिकेशन, प्रिंट अगर कोई आउटसाइड स्टेट किया गया है और उसको सर्कुलेट स्टेट के अंदर किया जा रहा है तो नोटिफिकेशन के थ्रू उसको प्रोहिबिट कर सकती है। जैसे कि सबसेक्शन 3 में बोला है कि अगर कोई स्टेट के बाहर पब्लिकेशन हुआ है और प्रिंट किया गया है किसी एडवर्टीज़मेंट को और वो स्टेट में सर्कुलेट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिट कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसे प्रोहिबिशन का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसको पनिशमेंट 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन 2,000 रुपीज़ तक या दोनों से पनिश किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 प्रोवाइड्स व्हेन एनी न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट और एनी और अदर पब्लिकेशन wherever printed or published appears to the state government to contain any advertisement or matter commending, soliciting use of or offering any liquor, the state government may by notification declare every copy of the issue of the newspaper or every copy of such book, booklet, leaflet, other publication to be forfeited to the government, and thereupon any excise officer, any officer of police or revenue department and any other person authorized in that behalf by the state government may seize the same wherever found in Chhattisgarh, and any collector or judicial magistrate of first class or second class or other officer authorized by state government by warrant authorize any police officer not below the rank of sub-inspector to enter and search for the same in any premises where any such copy of issue, such book, booklet, leaflet, publication जो suspected है कि यहाँ पर हो सकता है। Clear? Section 24 provides closing of shops for the sake of public peace. So the district magistrate by notice in writing to the licensee may require that any shops in which any intoxicant is sold shall be closed at such times or for such period as he may think necessary for the preservation of public peace. Public peace के लिए writing में licensee को require कर सकता है कि आप शॉप को बंद कर दो। If a riot or unlawful assembly is apprehended or occurs in the vicinity of any shop or a magistrate of any class, किसी भी क्लास का मजिस्ट्रेट जो प्रेजेंट है may require such shop to be kept closed for such period as he may think necessary, provided that when such riot or unlawful assembly occurs, licensee shall in the absence of magistrate अपनी किसी ऑर्डर के बिना ही अपनी शॉप्स को क्लोज कर लेगा जहाँ पर रियॉट अनलॉफुल असेंबली अकर्ड हुए हैं। When any magistrate issues an order under subsection 2, he shall forthwith inform the collector of his action and his reasons thereof. So कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू कर रहा है तो वो कलेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, रीजंस देगा एज पर सेक्शन 24। सो प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज है, बट जहाँ पर रियॉट और अनलॉफुल असेंबली होने के चांसेस हैं तो ऐसी जगह पर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास, कोई भी क्लास का मजिस्ट्रेट जो प्रेजेंट है वहाँ पर वो शॉप्स को बंद करने के लिए बोल सकता है। सेक्शन 25 प्रोवाइड्स ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स। सो ये ड्यूटी क्या इम्पोज करी जाएगी, ये सेक्शन 25 प्रोवाइड कर रहा है। एन एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी एज द केस में बी शैल इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी लेविड ऑन ऑल एक्साइजेबल आर्टिकल्स अदर देन मेडिसिनल और एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए जो स्पेसिफाई करा गया है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है,
एक्ट 1955 में, वो एग्जेम्प्टेड है। बाकी सारे एक्साइजेबल आर्टिकल पे एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे करनी होगी। उनके इंपोर्ट पर जो इंपोर्ट हुए हैं, एक्सपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, कल्टिवेटेड और कलेक्टेड अंडर एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13, मैन्युफैक्चर्ड एनी डिस्टिलरी इस्टेब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रूअरी लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। सो इन सब पे एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी देनी होगी। प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम एनी ड्यूटी विच द सेम मे बी लायबल अंडर दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी एक्साइजेबल आर्टिकल को ड्यूटी से एग्जेम्प्ट भी कर सकता है। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स ड्यूटी मे बी इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 एट डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू। तो डिफरेंट रेट्स पे ड्यूटी इम्पोज करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस टू विच एनी एक्साइजेबल आर्टिकल टू बी रिमूव्ड, द स्ट्रेंथ एंड quality of the excisable article, the use of excisable article for different purposes, and the value of excisable articles based on principles as may be prescribed. 10% surcharge on prescribed duty on excisable articles will be payable, which shall be transferred to rural and urban local bodies on the basis of their population. So fifth clause provide कर रहा है कि 10% surcharge जो एक्साइजेबल आर्टिकल पर पेबल होगा वो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑल राइट, सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज्ड देयर अंडर ऑन एनी आर्टिकल विच हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन टू इंडिया एंड वॉज लायबल ऑन सच इम्पोर्टेशन टू ड्यूटी अंडर सी कस्टम एक्ट 1878 और इंडियन टैरिफ एक्ट। तो ऐसे आर्टिकल्स जो इंडिया में इंपोर्ट करे गए हैं और उन पे ऑलरेडी ड्यूटी इम्पोज करी जा चुकी है सी कस्टम एक्ट के अंदर या द इंडियन टैरिफ एक्ट के अंदर, तो दोबारा उन पे ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाएगी। सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल बी कंस्टिट्यूट टू प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनहांसिंग और रिड्यूसिंग द रेट्स ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड द पावर टू एनहांस और रिड्यूस द रेट ऑफ ड्यूटी शैल इंक्लूड power to give it retrospective effect to such enhancement or reduction from a date not earlier than the commencement of the financial year। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ड्यूटी के रेट्स को एनहांस एंड रिड्यूस भी कर सकती है और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ उसको रिकवर भी कर सकती है, बट फाइनेंशियल ईयर के पहले से कमेंस नहीं होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के पहले से नहीं होगा। सो it was section 25 about imposition levying of duty on the excisable articles. Section 26 provides ways of levying such duty. तो ड्यूटीज़ कैसे लेवी किया जाएगा ये सेक्शन 26 प्रोवाइड कर रहा है। ड्यूटी शैल बी लेविड रेटेबली ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, कलेक्टेड, मैन्युफैक्चर्ड इन और इशूड फ्रॉम अ डिस्टिलरी, ब्रूअरी और वेयर हाउस। तो ड्यूटी जो लेवी किया जाएगा वो रेटेबली होगा एज पर द क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, बट प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोविजो दिया है जिसमें इट इज सेइंग दैट प्रोवाइडेड दैट ड्यूटी मे बी लेवीड ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स बाय एन एकरेज रेट लेवीड ऑन द कल्टिवेशन ऑफ द हेम्प प्लांट और बाय अ रेट चार्ज ऑन द क्वांटिटी कलेक्टेड। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स पे एकरेज रेट पे लेवी किया जा सकता है जो हेम्प प्लांट से कल्टीवेट किया जा रहा है ना। कल्टीवेशन ऑफ हेम्प प्लांट पर एकरेज रेट पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का ड्यूटी जो होगा वो लेवी किया जा सकता है, और इधर या फिर क्वांटिटी जो कलेक्ट करी गई है उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। सो दोनों में से किसी एक तरह से कर सकते हैं। सेकेंड प्रोवाइड्स ऑन स्प्रिट और बियर मैन्युफैक्चर्ड इन डिस्टिलरी एस्टैब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रूअरी लाइसेंस्ड अंडर दिस एक्ट in accordance with such scale of equivalent calculated on the quantity of materials used or by the degree of attenuation of the wash or what as the case may be, state government may prescribe. So it provides that in accordance with such scale of equivalent calculated on the quantity of material used or the degree or by the degree of attenuation of the wash or what as the case may be, एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब। सो या तो क्वांटिटी जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग इम्पोज करी जा सकती है ऐसे स्केल्स पे, या फिर द डिग्री ऑफ अटेन्यूएशन ऑफ द वॉश और वोट। सो अटेन्यूएशन मीन्स रिडक्शन। सो वॉश और वोट के अटेन्यूएशन की जो डिग्री होगी उस हिसाब से जो ड्यूटी होगी वो लेवी की जाएगी। या फिर सेकेंड प्रोवाइड्स बाय अ रेट चार्ज डायरेक्टली ऑन द मटेरियल यूज़, या फिर जो डायरेक्टली जो रेट चार्ज मटेरियल यूज़ हुआ है
उस पर चार्ज करके इम्पोज लेवी की जा सकती है. सी प्रोवाइड्स ऑन टरी बाय अ टैक्स ऑन ईच ट्री फ्रॉम विच द टरी इज़ ड्रॉन. सो टरी जिस ट्री से ड्रॉ किया गया है उन ट्रीज़ पे डायरेक्टली टैक्स इम्पोज करके लेवी किया जा सकता है. Subsection clause 2 provides where payment is made upon the issue of an excisable article for sale from a warehouse, it shall be at the rate of duty in force on the date of issue of such article from the warehouse. तो एक्साइजेबल आर्टिकल के इशू पे जो पेमेंट करी जानी है तो रेट ऑफ ड्यूटी जिस डेट पे वेयर हाउस से आर्टिकल इशू किया गया है उस डेट पे जो होगी उस पर उतनी ही लेवी की जाएगी. थर्ड प्रोवाइड्स वेयर द रेट ऑफ ड्यूटी इज़ एनहेंस्ड और रिड्यूस्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन issue of excisable article from warehouse and the excisable article is in stock with the holder of a license. The excisable article in stock shall be subject to the levy of duty at the rate so enhanced or reduced, and the difference in duty shall be payable or refundable as the case may be by or to the holder of license with whom such duty paid excisable article is in stock at the material time. So enhance और reduce भी किया जा सकता है और उसको recover भी किया जा सकता है. जो एनहांस ड्यूटी होती है उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिड्यूस की गई है या एनहांस करी गई तो अकॉर्डिंगली पेबल और रिफंडेबल होगी. सेक्शन 27 प्रोवाइड्स पेमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ लीजेस. सो इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू एनी ड्यूटी लेविएबल अंडर दिस चैप्टर द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ अ सम इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18. सो या तो इन एडिशन और इंस्टेड ऑफ ड्यूटी एक सम लीज के कंसिडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है. सेकेंड प्रोवाइड्स नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल बी कंस्टिट्यूट टू प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनहांसिंग और रिड्यूसिंग द सम received in consideration of a grant of any lease under section 18 during the course of financial year or during the currency of a license, and the power to enhance or reduce this sum shall include power to give it retrospective effect to such enhancement or reduction from a date not earlier than the commencement of the financial year. So same provision हमने अभी पिछले किसी सेक्शन में देखा. तो इसमें किसी भी टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट एनहेंस और रिड्यूस कर सकती है ऐसे पेमेंट को और वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी रिकवर किया जा सकता है. सेक्शन 27 कैपिटल ए प्रोवाइड्स savings for duties being levied at commencement of the constitution. So subsection 1 provides until provision to the contrary is made by parliament, the state government may continue to levy any duty to which this section applies, which it was lawfully levying immediately before the commencement of the constitution under this chapter as then in force. So जो पहले जो जब तक कि लॉ नहीं बना लेता पार्लियामेंट ऐसे चीज़ों पर जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले रिकवर कर रही थी वो कंटिन्यू करेगी उस पर लेवी करना है ऐसे आर्टिकल्स पे. सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स द ड्यूटीज़ टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर एनी ड्यूटी ऑन इंटॉक्सिकेंट्स विच आर नॉट एक्साइजेबल आर्टिकल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट. सो इस एक्ट में जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स नहीं है ऐसे आर्टिकल्स इस सेक्शन के अंदर आते हैं. एनी ड्यूटी ऑन एन एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया एंड इम्पोर्टेड इनटू स्टेट वेदर अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट. सो ऐसे ड्यूटीज़ ऐसे एक्साइजेबल आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. सबसेक्शन 3 प्रोवाइड कर रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अथराइज द लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी ड्यूटी which as between goods manufactured or produced in the state and similar goods not so manufactured or produced discriminates in favor of the former, which in the case of goods manufactured or produced outside the state discriminates between goods manufactured or produced in one locality and similar goods produced or in another locality. So ultimately it is providing कि जो भी ड्यूटी इम्पोज की जाएगी वो किसी लोकेलिटी की वजह से या कहीं पर प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही है सेम क्वालिटी की जो गुड है सिमिलर है उसमें कोई भी ड्यूटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लेवी करने में. स्टेट्स डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती हैं ऐसे सिमिलर जो आर्टिकल्स होंगे उस पर ड्यूटी इम्पोज करने में. सेक्शन 28 प्रोवाइड्स फॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस. एवरी परमिट और पास इशूड और लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इशूड और ग्रांटेड ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीस for such period subject to such restrictions or conditions and shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed. Second provides the conditions prescribed under subsection 1 may require inter alia the licensee to
left for sale, minimum quantity of country spirit or Indian made liquor fixed for his shop and to pay the penalty at the prescribed rate on the quantity of liquor short lifted. सो कंडीशन जो परमिट पास लाइसेंस की ये भी हो सकती है कि कंट्री मेड जो स्पिरिट है, इंडियन मेड लिकर, उनको आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी में रखना है और सेल आउट करना है, और अगर नहीं करते हो तो उस पर पेनल्टी पे करनी है, ये कंडीशन हो सकती है. थर्ड, प्रोवाइड्स पेनल्टी एट द प्रेस्क्राइब रेट ऑन इन्फेक्शन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी कंडीशंस लेड डाउन इन सबसेक्शन 1 ऑफ स्पेसिफिकली इनमेरेटेड इन सबसेक्शन 2 शैल बी लेवेबल एंड रिकवर्ड फ्रॉम द लाइसेंसी. सो ये जो पेनल्टी है जो इसमें देना है, और सबसेक्शन 1 में जो कंडीशंस हैं उनके ब्रीच पे जो भी इन्फ्रिंजमेंट पे वो पेनल्टी पे करनी है, उसको लेवी किया जा सकता है और वो रिकवरेबल होगी लाइसेंसी से. सेक्शन 28 कैपिटल ए प्रोवाइड्स पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस. सो द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट दैट द मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सेल, परचेस, यूज, कलेक्शन और कल्टिवेशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, denatured spirituous preparation or hemp shall be under the supervision of such excise staff as the excise commissioner may deem proper to appoint in this behalf, and that the person manufacturing, importing, exporting, transporting, storing, selling, purchasing, using, collecting or cultivating the intoxicant or denatured spirituous preparation shall pay to the state government towards supervision charges as levy as may be imposed by the state government in this behalf. So supervision charges भी levy करे जाएंगे जो state government provide करेगी ऐसे supervision के लिए, और ऐसा excise staff जो excise commissioner बताएगा वो इसको उसके supervision में ये सारी चीज़ें की जाएंगी. Proviso provides that provided that the state government may exempt any class of persons or any institution from paying the whole or any part of such levy. So स्टेट गवर्नमेंट एट द सेम टाइम एग्जेम्प्ट भी कर सकती है लोगों को या किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसे चार्जेस को पे करने के लिए. सेक्शन 29 प्रोवाइड्स पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंसी. एनी अथॉरिटी ग्रांटिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट मे रिक्वायर द लाइसेंसी टू एग्जीक्यूट अ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट इन कन्फॉर्मिटी विद द नेचर ऑफ हिज लाइसेंस एंड टू गिव सच सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट और टू मेक सच डिपॉजिट और टू प्रोवाइड बोथ एज सच अथॉरिटी में थिंक फिट. So it is providing that जो अथॉरिटी लाइसेंस ग्रांट कर रही है वो लाइसेंसी से एक काउंटर पार्ट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा सकती है कि आप जो लाइसेंस होगा वो उसको आप फॉलो करोगे, वो उसमें जो चीज़ें उसको सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करोगे, एंड साथ में एक सिक्योरिटी ले सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है उसको परफॉर्म करोगे. सो ऐसा एग्रीमेंट कराया जा सकता है कि जो लाइसेंस है वो उस पे जो एग्रीमेंट है और उसके साथ उसकी सिक्योरिटी भी ली जा सकती है कि आप उसको परफॉर्म करोगे, या फिर डिपॉजिट लिया जा सकता है, या दोनों अगर अथॉरिटी को लगता है तो दोनों ही चीज़ें, सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट. सो ये सेक्शन 29 में प्रोवाइड किया गया. सेक्शन 30 प्रोवाइड्स टेक्निकल डिफेक्ट्स, इरेगुलरिटीज़ एंड omissions. No license granted under this act shall be deemed to be invalid by reasons merely on any technical defect, irregularity or omission in the license or in any proceedings taken prior to the grant thereof. So that is providing कि कोई भी लाइसेंस जो इशू किया गया है उसमें कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट है या इरेगुलरिटी है या कोई ओमिशन है और कोई प्रोसीडिंग्स की गई हैं ग्रांट के पहले, तो वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा ऐसा लाइसेंस अगर वहाँ पर ये चीज़ें है. द डिसीज़न ऑफ एक्साइज कमिश्नर फाइनल होगा. अगर इन चीज़ों पर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो एक्साइज कमिश्नर का डिसीज़न फाइनल होगा ऐसी इरेगुलरिटी, डिफेक्ट और ओमिशन पर. सेक्शन 31 प्रोवाइड्स forgot to write down a marginal note, but it provides power to cancel or suspend license. Section 31 is about power to cancel or suspend license. So it provides that subject to such restrictions as the state government may prescribe, the authority granting any license, permit or pass. So license, permit or pass, there are three things.
उसका स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस एज अ स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, द अथॉरिटी जो भी ग्रांट कर रही है लाइसेंस को, पास या परमिट को इस एक्ट के अंदर, वो कैंसिल या सस्पेंड कर सकती है ऐसे लाइसेंस, परमिट या पास को इन कंडीशंस में इफ़ ए प्रोवाइड्स इफ़ एनी ड्यूटी और फी पेबल बाय द होल्डर देयर ऑफ नॉट ड्यूली पेड, और in the event of any breach by the holder thereof or by any servants or by anyone acting on his behalf with his express or implied permission of any of the terms and conditions thereof, तो terms and conditions के breach पर, see if the holder thereof or any of his servants or anyone acting on his behalf with his express or implied permission is convicted of any offence under this act or any other law for the time being in force relating to revenue or any offence under Dangerous Drugs Act 1930 or under the Indian Merchandise Marks Act 1889 or under any section which has been introduced into IPC section 3 of that act. So ये प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पे आप किसी लॉ में इस एक्ट के अंदर या तो कन्विक्ट हो गए हो या रेवेन्यू से रिलेटेड आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, या डेंजरस ड्रग्स एक्ट या मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट और अंडर एनी सेक्शन विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इनटू द आईपीसी, उसमें आपका कन्विक्शन हो गया है, आपने ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पर आपकी लाइसेंस या परमिट को या पास को कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है. सो इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट यहाँ पर कन्विक्टेड वर्ड यूज़ हुआ है. सिर्फ चार्जेस या एक्यूजेशंस या आपका ट्रायल चल रहा है ये सफिशिएंट नहीं है. दे यूज्ड वर्ड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड दीज एक्ट्स, और इन दिस एक्ट पर्टिकुलर एक्ट एक्साइज एक्ट के अंदर आप कन्विक्ट हो जाते हो या इन एक्ट्स के अंदर कन्विक्ट हो जाते हो तब जाके कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है. Clause D provides if the holder thereof is convicted of any cognizable and non-billable offence. तो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है जो cognizable and non-billable है तो भी सस्पेंड एंड कैंसिल किया जा सकता है. E provides if the holder thereof is punished for any offence referred to in Clause 8 of Section 167 of C Custom Act. तो यहाँ पर पनिश किया गया है. या फिर F provides where a license, permit or pass been granted on the application of the holder of any lease granted under section 18 on the requisition in writing of such lessee. So जहाँ पर license permit और was in terms of lease grant किया गया है as per section 18, तो यहाँ पर lessee की writing में requisition पे उसको suspend या cancel कर सकते हैं. G provides if the conditions of the license, permit or pass provide for such cancellation suspension at will. तो at will का अगर वहाँ पर condition है तो at will भी इसको suspend या cancel किया जा सकता है. Subsection 1 capital A provides before making an order cancelling or suspending a license, permit or pass under subsection 1, the authority aforesaid shall record in writing the reasons for the purposed action, furnish to the holder thereof a brief statement of the same, and afford him a reasonable opportunity of being heard. Okay. Subsection 2 provides where license, permit or pass held by any person is cancelled under subsection A, B, C, E of subsection 1. The authority aforesaid may cancel any other license, permit or pass granted to that person under this act or any other law for the time being in force relating to excise revenue or under the OPM Act 1878. तो अगर कोई ऐसे A, B, C, E के अंदर अगर कैंसिल, सस्पेंड और कैंसिल हुआ है तो अदर जो लाइसेंस भी उसको इशू करेंगे वो भी कैंसिल किए जा सकते हैं. The holder of subsection 3 provides the holder of a license, permit or pass shall not be entitled to any compensation for its cancellation or suspension, nor to refund of any fee, paid, deposit made in that respect. तो ये cancellation और suspension पे कोई भी compensation claim नहीं करा जा सकता होल्डर के द्वारा. Subsection 4 provides where a license is cancelled or suspended under A, B, C, E of subsection 1, the fee payable for the balance of period for which such license would have been current but for such cancellation or suspension may be recovered from ex licensee as excise revenue. तो जो फी बैलेंस जो पेबल है वो एक्स लाइसेंसी से रिकवर किया जा सकता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन जब हो जाता है. B provides the collector may take the grant under management or resale it at the risk and loss of ex licensee, but any profit realized by such management or resale which is not in excess of the amount recovered for such period shall be paid to the ex licensee. Section 32 provides power to withdraw licenses.
So subsection 1 provides whenever the authority which granted any license under this act considers that such license should be withdrawn from for any cause other than those specified in section 31, it shall remit a sum equal to the amount of the fees payable in respect thereof for 15 days and may withdraw the license either on the expiration of 15 days notice in writing of its intention so to do, forthwith without notice. सो प्रोवाइड्स दैट लाइसेंस को विड्रॉ कर सकती है जो अथॉरिटी जिसने ग्रांट किया है, उसको लगता है कि विड्रॉ कर लेना चाहिए सेक्शन 31 में जो रीजंस दिए हैं. सो इट शैल रिमिट अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फीस पेबल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ फॉर 15 days and may withdraw the license either on the expiration of 15 days notice in writing or forthwith without notice. Subsection 2 provides if any license be withdrawn अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब फोर्थ विद विदाउट नोटिस के फोर्थ विद विड्रॉ कर लेने पे द अफोर्सेड अथॉरिटी शैल इन एडिशन टू द रिमिटिंग सच सम एज अफोर्सेड पेड टू द लाइसेंसी सच फर्दर सम बाय वे ऑफ कंपनसेशन, जो एक्साइज कमिश्नर डायरेक्ट करता है. थर्ड प्रोवाइड्स व्हेन अ लाइसेंस इज विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1 any fee paid in advance or deposit made by licensee in respect thereof shall be refunded to him after deducting the amount due to the government. सो जो एडवांस और डिपॉजिट है वो रिफंड कर देंगे विड्रॉल पे और आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द गवर्नमेंट. सेक्शन 33 प्रोवाइड्स सरेंडर ऑफ लाइसेंसेस. एनी होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट टू सेल एन इंटॉक्सिकेंट मे सरेंडर इज लाइसेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month's नोटिस. 1 महीने के नोटिस पर राइटिंग में सरेंडर कर सकता है होल्डर ऑफ लाइसेंस को. ये सरेंडर किया जाएगा 1 month नोटिस इन राइटिंग, जो कलेक्टर को नोटिस भेजा जाएगा ऑफ हिज इंटेंशन टू सरेंडर द सेम एंड ऑन पेमेंट ऑफ द फी पेबल फॉर द लाइसेंस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच इट वुड हैव बीन करेंट पुट फॉर सच सरेंडर. सो जो फ़ी पेबल होगी पेमेंट वो पेमेंट करना उसको ज़रूरी होगा लाइसेंस को रिमाइंडर ऑफ द पीरियड को. प्रोविजो प्रोवाइड करता है प्रोवाइड दैट इफ द एक्साइज कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट देर इज सफिशिएंट रीजन फॉर सरेंडरिंग अ लाइसेंस ही में रिमिट टू द होल्डर द सम सो पेबल ऑन सरेंडर. सो जो रीज़न सही हैं सरेंडर करने के तो वो अमाउंट जो रिमिट होनी चाहिए वो रिमिट कर दी जाएगी, जो भी पोर्शंस हैं वो दे दिया जाएगा होल्डर को, रेमिटेंस दे दिया जाएगा. सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स subsection 1 shall not apply in case of any license granted under section 18. So it is about lease. By way of lease जो license grant करे जाते हैं उन पर subsection 1 apply नहीं होगा. It provides explanation. The words holders of license as used in this section include a person whose tender or bid for a license has been accepted although he may not actually have received the license. तो जो जिनका टेंडर और बिड पास हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, भले ही उनको लाइसेंस रिसीव नहीं हो, ऐसे लोग भी होल्डर ऑफ लाइसेंस कहलाएंगे एज पर दिस सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.